خاص اس اہم خبر کے ساتھ کہ حکومت پنجاب نے 2 افسران کے تقرر تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ڈیپٹی کمشنر قصور کیپٹن ریٹائرڈ اورنگزیب حیدر خان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ سلمان خان نئے ڈیپٹی کمشنر قصور تعینات ہوں گے۔ تو اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، حکومت پنجاب نے 2 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے ہیں اور ان کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ احکامات کے مطابق ڈیپٹی کمشنر قصور کیپٹن ریٹائرڈ اورنگزیب حیدر خان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور سلمان خان نے نئے ڈیپٹی کمشنر قصور تعینات ہوں گے۔ حکومت پنجاب نے 2 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے ہیں اور ان کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ صرافہ بازاروں میں تیزی، ملکی صرافہ مارکیٹس میں سونے کی قیمتوں میں تیزی کا رجحان، جبکہ سونا 700 روپے تولہ اور چاندی 20 روپے فی تولہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ 24 کیرات خالص سونے کی قیمت کاروباری ہفتے کے پہلے روز 3,03,500 سے بڑھ کر 3,04,200 روپے فی تولہ ہو گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $2,904 فی اونس ہو گیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، دن جو ہے وہ صرافہ مارکیٹوں میں تیزی کا رجحان رہا ہے اور ملکی صرافہ مارکیٹ میں آج سونا جو ہے 700 روپے فی تولہ تک مہنگا، جبکہ چاندی کی قیمتوں میں 20 روپے فی تولہ تک جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آج کاروبار کے آغاز کے ساتھ 24 کیرات خالص سونے کی قیمت کاروباری ہفتے کے پہلے روز 3,03,500 روپے تھی، جو کہ بڑھ کر 3,04,200 روپے فی تولہ کی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح جو 22 کیرات سونا ہے وہ 2,78,900 روپے ہے، جبکہ 21 کیرات سونا جو ہے 2,66,250 روپے فی تولہ سے تجاوز کر چکا ہے۔ چاندی کی قیمتوں میں آج 20 روپے کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور چاندی کی قیمت 3,260 روپے فی تولہ مقرر کی گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتیں جو ہیں $2,904 فی اونس کی سطح پر پہنچ چکی ہیں، جس کے بعد ملکی صرافہ مارکیٹوں میں بھی سونے کی قیمتوں میں تیزی کا رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس حوالے سے صرافہ اینڈ جیولر ایسوسی ایشن کا موقف یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ملکی صرافہ مارکیٹ بری طرح متاثر ہے۔ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز روپے قدر میں معمولی کمی، ڈالر کی قدر میں 6 پیسے اضافہ ہو گیا۔ انٹرا بینک میں ڈالر کا ریٹ 279 روپے 27 پیسے پر بند ہوا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ 281 روپے تک رہا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں زاہد عابد سے۔ زاہد، بتائیے آج کا صورتحال رہی مارکیٹ میں؟ زاہد عابد سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ بتا رہے ہیں کاروباری ہفتے کے پہلے روز روپے کی قدر میں معمولی کمی، ڈالر کی قدر میں 6 پیسے اضافہ ہو گیا ہے اور انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ 279 روپے 27 پیسے پر بند ہوا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ 281 روپے تک رہا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کاروباری ہفتے کے پہلے روز روپے کی قدر میں معمولی کمی ہوئی ہے، ڈالر کی قدر میں 6 پیسے اضافہ ہو گیا ہے۔ انٹرا بینک میں ڈالر کا ریٹ 279 روپے 27 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ 281 روپے تک رہا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کاروباری ہفتے کے پہلے روز روپے کی قدر میں معمولی کمی رہی ہے اور ڈالر کی قدر میں 6 پیسے اضافہ ہو گیا ہے۔ انٹرا بینک میں ڈالر کا ریٹ 279 روپے 27 پیسے پر بند ہوا ہے۔ کراچی کی منیر جیل میں بھارتی ماہی گیر کی ہلاکت کا معاملہ 55 سالہ بابو کی میت واہگہ بارڈر کے راستے بھارتی حکام کے حوالے کر دی گئی ہے۔ بابو 23 جنوری کو طبیعت خراب ہونے پر انتقال کر گیا تھا۔ بھارتی ماہی گیر 2022 میں سمندری حدود کی خلاف ورزی پر گرفتار ہوا تھا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر، منیر جیل میں بھارتی ماہی گیر جو ہے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ 55 سالہ بابو کی میت واہگہ بارڈر کے رستے اب جو ہے وہ بھارتی حکام کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ایک بھی ترجمان کے مطابق بابو 23 جنوری کو طبیعت خراب ہونے پر جو ہے وہ انتقال کر گیا تھا۔ بھارتی ماہی گیر کی میت بذریعہ ہوائی جہاز دی فاؤنڈیشن کی ٹیم کی نگرانی میں لاہور جو ہے وہ پہنچائی گئی۔ بھارتی ماہی گیر 2022 میں سمندری حدود کی خلاف ورزی پر جو ہے وہ گرفتار ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جیل میں اس کا انتقال ہوا کراچی جیل منیر میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ترجمان کا کہنا ہے کہ اس کی لاش کو لاہور منتقل کیا گیا، جہاں اب جو ہے وہ بھارتی حکام کے حوالے ان کی لاش جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے مدثر، ساتھ ہی موجود رہے گا۔ سی ٹی او لاہور اندر وحید کا ڈیفنس سرکل کا دورہ، موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹ تقسیم کیے ہیں۔ سی ٹی او لاہور نے روڈ رکشہ اور موٹر سائیکل رکشہ چلانے والوں میں بھی ہیلمٹ تقسیم کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہیلمٹ کی پابندی موٹر سائیکل پر دونوں سوار لازمی کریں، یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے۔ ٹریفک قوانین کی پاسداری سے ہی حادثات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ مدثر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مدثر، کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے سی ٹی او لاہور نے ڈیفنس سرکل کا دورہ کیا۔ سرکل افسران محمد اشفاق نے ان کو جو ہے وہ سی ٹی او لاہور کو بریفنگ دی۔
सिटी लाहौर ने मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट तकसीम किया, जिसमें ट्रैफिक एम्बेसडर ने भी हिस्सा लिया। डॉक्टर अख्तर वहीद ने रोड सेफ्टी एम्बेसडर को इनकी खिदमत का सर्टिफिकेट भी जो है वो दिया। सिटी लाहौर ने लोडर रिक्शा और मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वालों में भी हेलमेट तकसीम किए। सर सिटी लाहौर का कहना है कि मोटरसाइकिल रिक्शा और लोडर रिक्शा चलाने वाले भी हेलमेट पहने, इनकी भी जिंदगी बहुत कीमती है। सिटी लाहौर का मजीद कहना था कि मोटरसाइकिल रिक्शा और लोडर रिक्शा चलाने वालों को एक हफ्ता आगाही देंगे, अगले 3 के रोज से कार्रवाई का जो है वो आगाज करेंगे और उनके चालान जो है वो हेलमेट ना पहनने पर शुरू करेंगे। हेलमेट की बंदी मोटरसाइकिल पर दोनों सवार लाजमी करेंगे, ये इनकी हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है। सिटी लाहौर का मजीद कहना था कि शहरी हेलमेट पहने और मोटर बाइक चलाते हुए ये बात जरूर सोचें कि आपके घर वाले जो है वो उनका इंतजार कर रहे हैं। ट्रैफिक कानून की पासदारी से ही उनको कहना है कि शहरी जो है वो अच्छे शहरी बन सकते हैं और हादसा से भी महफूज रह सकते हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ताहिर नसरुल्लाह वराइश के एजाज़ में तकरीब के इनेकाद। ओहदा संभालने पर ताहिर नसरुल्लाह वराइश को इत्तेहाद लॉयर्स ग्रुप की जानिब से मुबारकबाद दी गई। इत्तेहाद लॉयर्स ग्रुप ने सदारती उम्मीदवार साकिब अकरम गोंदल की हिमायत का भी ऐलान किया है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक। बिल्कुल, इत्तेहाद लॉयर्स ग्रुप के चेयरमैन चौधरी नसीर अहमद कबो एडवोकेट और सदर वाजिद लंगड़ियाल की जानिब से वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ताहिर नसरुल्लाह वराइश के एजाज़ तकरीब में तमाम किया गया, जबकि इस मौके पर सदारती उम्मीदवार आसमा जहांगीर ग्रुप साकिब अकरम गोंदल की मुकम्मल तौर पर हमायत का ऐलान भी किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन इत्तेहाद लॉयर्स ग्रुप चौधरी नसीर कबो एडवोकेट ने कहा कि वो आसमा जहांगीर ग्रुप के साथ खड़े हैं और इस ग्रुप की खूबसूरत बात यह है कि इस ग्रुप ने का जो भी कैंडिडेट जब भी कामयाब हुआ उसने वकला से किए गए तमाम वादे पूरे किए हैं। इस मौके पर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ताहिर नसरुल्लाह वराइश ने चेयरमैन इत्तेहाद लॉयर्स ग्रुप चौधरी नसीर कम्बो और सदर वाजिद लंगड़ियाल का शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि 22 फरवरी को साकिब अकरम गोंदल भारी मार्जिन से कामयाब होंगे। इस मौके पर सदर वाजिद लंगड़ियाल की जानिब से ये खिताब किया गया और उन्होंने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ताहिर नसरुल्लाह वराइश का शुक्रिया अदा किया और सदारती उम्मीदवार साकिब अकरम गोंदल की मुकम्मल तौर पर हमायत का ऐलान किया। तकरीब से खिताब करते हुए दीगर मुकर्ररीन पीर मसूद चिश्ती समेत दीगर ने खिताब किया और ये कहा कि 22 फरवरी को लाहौर हाईकोर्ट बार का इलेक्शन है और इस हवाले से वो सदारती उम्मीदवार साकिब अकरम गोंदल की मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया अशफाक। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद से और पाकिस्तान ताजर की डेलीगेशन ने मुलाकात की है। नईमीर की क़यादत में ताजर डेलीगेशन ने SMBR को अपने मसाइल बारे आगाह किया है। ओकाड़ा, विहाड़ी, फैसलाबाद और शेखुपुरा से ताजर नुमाइंदों ने भी शिरकत की, जबकि नबील जावेद की ताजरों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। इससे पर बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इजलास और पाकिस्तान ताजर बरादरी ने इस इजलास में शिरकत की है। नईमीर की क़यादत में ताजर ने SMBR को मसाइल बारे आगाह किया और ओकाड़ा, बिहारी, फैसलाबाद और शेखुपुरा से ताजर नुमाइंदों ने भी शिरकत की, इस वजह से नबील जावेद की ताजर को तमाम तरह सहूलियत फराहम करने की यकीनदानी सामने आई है, जिसमें सरकारी मुलाज के लीज और किराए में मुतल्लिक मामला पर गुफ्तगू की गई। SMBR नबील जावेद का कहना है कि सरकारी राजी पर दुकानों का किरायाजात मार्केट रेट्स के मुताबिक तय हो रहे हैं, जबकि दलाली का अमल साफ शफाफ और मेरिट पर हो रहा है। इसी सिलसिले में वज़ीर पंजाब की हदायत के मुताबिक रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है। नबील जावेद का यह भी कहना है कि ताजर वफद की वज़ीर आला पंजाब के तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की तारीफ करते हैं, जबकि तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई और ताजर बरादरी हुकूमत के साथ इजलास में मेंबर कम्युनिस्ट और सेक्रेटरी कम्युनिस्ट ने भी शिरकत की। जी, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जिलानी पार्क में जश्न बहारा के सिलसिले में फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जो 23 फरवरी तक जारी रहेगी। शाम होते ही शहरियों ने फूलों के दिलकश रंग देखने के लिए जिलानी पार्क का रुख कर लिया है। शहरियों के क्या तासुरात हैं, इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद अली, जो कि इस वक्त जिलानी पार्क में ही मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। बताइए अली, क्या कहना है शहरियों का? जी, बागों के शहर लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जिलानी पार्क में खूबसूरत फूलों की नुमाइश लगाई गई है। 23 फरवरी तक ये जारी रहेगी और इसका रात वक्त जो है वो 8 बजे तक रखा जाता है।
रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे लाइटिंग होती है, और जो उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं इसमें इन्होंने जानवरों के मॉडल्स बनाए हुए हैं। बहुत खूबसूरत इस पर सजाया गया लाहौर को, क्योंकि जश्न बहारा भी है, हॉर्स एंड कैटल शो, और सबसे बड़ी बात है लाहौर के लिए कि एक तो मैचेस शुरू हो रहे हैं। ये 3 अहम खुशियाँ जो लाहौर में लोग आपस में बांटते हैं, और जैसे शाम होती है लोग यहाँ पे पहुँचना शुरू होते हैं। मेरे साथ फैमिलीज भी मौजूद है, पूछ लेते हैं इनसे भी कि इन्होंने कैसी लगी नुमाइश। अस्सलाम वालेकुम बेटी, कैसी लगी नुमाइश? बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आ रहा है। बच्चों के साथ आई हैं? जी मैं अपने बेटे के साथ आई हूँ और अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये फैमिलीज यहाँ पे पहुँची, बेटियाँ भी पहुँची हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैसेज दें फूलों की नुमाइश पर। जी बहुत मज़ा आया, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। उसके बाद ये डेकोरेशन भी इन्होंने बहुत प्यारी की है। फ्लावर्स बहुत खूबसूरत हैं, एक एक फ्लावर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इतना खिला हुआ है, इतना खूबसूरत, और सब कुछ बहुत अच्छा है। हम अपनी फैमिली के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, फूल कौन से पसंद? फूल ये बहुत पसंद आए हैं ये बट सारे। मुझे जो है वो रेड रोज जी। पसंद है। अच्छा, बच्चियाँ खूबसूरत बेटियाँ जो सी हैं, और फूलों की तरह हमेशा ये मुस्कुराती रहें लाहौर में, क्योंकि एक अच्छा इंतज़ाम किया गया। वज़ीर आला ने यह हिदायत जारी की गई है कि ये नुमाइश जो सी 23 तारीख तक रहनी चाहिए। 14 फरवरी को इसका इफ्तिताह हुआ था, इस बार थोड़ा डिफरेंट है। आपको दिखाएगा ज़ुहैब, एक तो डिजिटल स्क्रीन लगाई गई बहुत बड़ी, पीछे लाइटें बहुत ज़बरदस्त लगाई गई हैं, फूलों की 200 से ज़्यादा इकसाम है, रंग बिरंगे फूल हैं, महकती खुशबू इनकी, और बच्चे बिलखसूस और फैमिली जोन सी हैं वो इस सारे नज़ारे को देख के बहुत खुश होते हैं। मुतालबा सिर्फ इनका एक ही है कि रात 10 बजे तक इसका वक्त बढ़ाया जाए, ताकि जो बच्चे आते हैं ट्यूशन सेंटर से या जो बच्चे कॉलेजेस से आते हैं वो रात को शिरकत कर सकें। अभी फ़िलहाल 23 तारीख तक आ गया PHA की जानिब से कि ये नुमाइश इसी तरह रहेगी, और इनका जो औकात रखेगी एक तरफ से एंट्री गेट और आउट गेट रखा गया। PHA यही चाहता है कि जो लोग दाखिल हों वो नुकसान ना करें, तारों को ना तोड़ें, फूलों को ना तोड़ें। लेकिन लाहौर के अंदर क्योंकि फ़िज़ा की जो स्मोक की फ़िज़ा थी वो ख़त्म हुई, अल्लाह का शुक्र है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होना शुरू हुआ, और इसी तरह लाहौर मुस्कुराता रहे ताकि शहरी जोन से फूलों की नुमाइश में यहाँ पे हर साल देखने के लिए आएँ। जी, आपका बहुत शुक्रिया अली। तो जलानी पार्क में इस वक्त आप देख रहे हैं कि शहरी काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं, और शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि जश्न बहारा का ये सिलसिला ऐसे ही बरकरार रहे, जबकि ये सिलसिला 23 फरवरी तक भी जारी रहेगा। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार प्रोग्राम का इजरा आसान कारोबार कार्ड के जरिए बिला सूद 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। प्रोग्राम के तहत कर्ज की 3 साल में आसान एक साथ में वापसी होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कामयाब उम्मीदवारों में चेक भी तकसीम किए, जबकि कहा कि कर्ज से आपको मिले हैं, खुशी मुझे हो रही है। एक साल में महंगाई कम, मईशत बेहतर हुई है। किसान कार्ड से किसान 50 अरब से ज़्यादा की खरीदारी कर चुके हैं। लोग जो मर्जी कहते रहे सबको समझ आ गई, पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पर है। PTI के दौर में नलायकी और बेहिस्सी के अंबार लगे थे। कर्जे आपको मिले, खुशी मुझे हो रही है। 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक के कर्जे की स्कीम है, जिसमें 0 इंटरेस्ट है, 1 पैसा भी सूद का हम नहीं ले रहे, और जो 10 लाख रुपए है वो कार्ड पे आपको कर्ज़ा दिया जा रहा है, और उसके लिए कोई आपसे लंबी चौड़ी सवालनामा आपको नहीं दिया गया, कोई लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं मांगी गई। पिछले 1 साल में पाकिस्तान में बहुत इकॉनमी में भी इम्प्रूवमेंट आई है, और लोगों की मेयार ज़िंदगी भी बेहतर हो रहा है, क्योंकि जब महंगाई कम होती है तो लोगों की जो जेब है उस पर बोझ कम होता है। तो महंगाई जब हमने टेक ओवर किया तो 38% पे महंगाई थी, इस वक्त जो है वो 4% से नीचे है महंगाई माशाल्लाह। इस वक्त मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एक बिल्कुल टेक ऑफ पोजीशन पे खड़ा है। लोग तंग आ चुके हैं घेराव, जलाओ, इंतशार, फितना, फसाद से। लोगों ने अपने घरों में अपने किचन चलाने हैं, अपने बच्चों का पेट पालना है, अपना मुस्तकबिल संवारना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो लोग देख रहे हैं कि उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आ रही है। नालायकी के अंबार लगे हैं, बेहिसी के अंबार लगे हैं, तो ये जो 38% पे गई है, लोगों का जीना मुहाल हो गया, लोग खुदकुशियाँ करने लग गए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना है कि करप्शन, माशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगाती थी। बदकिस्मती है कि तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। शहबाज शरीफ की मेहनत से माशी इस्तेहकाम वापस आया है। ये रिपोर्ट देखिए।
मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि करप्शन, माशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थी। बदकिस्मती है कि तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया, सियासत में गंद डालकर इसे तबाह किया गया। बदतहजीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। शहबाज शरीफ की मेहनत से माशी इस्तेहकाम वापिस आया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अरकान असम्बली से गुफ्तगू में कहा कि अवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझकर संभाला। क़यादत और जमात का शुक्रिया, मुझे ये जिम्मेदारी दी। मुलाकात में अरकान पंजाब असम्बली ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माशी इस्तेहकाम के लिए शहबाज स्पीड से काम किया। पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर मरियम नवाज की अवामी खिदमत का हर तरफ एतराफ़ हो रहा है। अरकान असम्बली की पार्टी क़यादत के साथ मुलाकात के मौके पर सेनेटर परवेज़ रशीद, राना सनाउल्लाह और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद थीं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं हेल्थ सिस्टम में वज़ीर आला पंजाब का काम नज़र आ रहा है। हेल्थ यूनिट अपग्रेड हो रहे हैं, जदीद मशीनरी हस्पतालों में लाई जा रही हैं, जबकि 12 मोहलिक बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ भी कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद बिलाल। 12 मोहलिक बीमारियों से बचाव के इकदामात। नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में बिग कैचअप वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। सूबाई वज़रा ख्वाजा इमरान नज़ीर और फैसल अयूब खोकर ने वैक्सीनेशन पिलाकर मुहिम का आगाज किया। नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में जदीद तामीर शुदा इमरजेंसी ब्लॉक और रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्लासेस का इफ्तिताह भी किया गया। सेक्रेटरी लेबर नईम गौस, सेक्रेटरी हेल्थ नादिया साकिब, कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली और यूनिसेफ नुमाइंदगान और दीगर अफसरान की भी शिरकत। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था सूबे भर में 17 फरवरी से 15 मार्च तक बिग कैचअप मुहिम जारी रहेगी। 5 साल तक के बच्चों को 12 मोहलिक बीमारियों से बचाव के हिफाजती टीकाजात लगाए जाएंगे। सूबाई हेल्थ सिस्टम में वज़ीर आला पंजाब का काम नजर आ रहा है। आज की ये जो बिग कैचअप की जो तकरीब है ये इसलिए की गई है कि वो जो रिवर्स स्पीड आई थी वो लाखों करोड़ों बच्चों को वैक्सीन से महरूम कर गई थी। लेकिन ये जो बिग कैचअप है इसमें 8 लाख से ज़ायद बच्चों को इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में कवर किया जाएगा। हमारी इंशाअल्लाह ताला पोलियो और दूसरी जो हमारी 12 किस्म की जो हमारी वैक्सीन हैं उनको देने के लिए हमारे 5000 से ज़ायद वैक्सीनेटर्स इंशाअल्लाह पूरा 17 फरवरी से 15 मार्च तक फील्ड में मसरूफ़ अमल होंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर का मजीद कहना था कि मरियम नवाज स्पेशल क्लिनिक पर वैक्सीन की फराहमी के खसूसी इंतजामात किए गए हैं। कैमरामैन बाबर के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। शहरियों के महफूज सफर के इकदामात। मोटरसाइकिल, रिक्शा और लोडर रिक्शा ड्राइवर्स के लिए भी हेलमेट पहनना लाजम करा। रिक्शा ड्राइवर्स ने फैसले को मुज़हका खेज करार दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। मोटरसाइकिल सवारों के बाद अब लोडर रिक्शा और मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवरों के लिए भी हेलमेट पहनना लाजमी करार दिया गया है। सीटीओ लाहौर अतर वहीद की जानिब से हेलमेट पहनने के अहकामात को नाफिजुल अमल किया जा चुका। ट्रैफिक पुलिस तर्जुमान का कहना है कि ये इकदाम शहरियों की जानो माल की हिफाजत और महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है, जबकि मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवरों ने फैसले को अजीब करार दिया। कहते हैं ये फैसला महज चालान करने और पैसा इकट्ठा करने का बहाना है। चालान जो कर रहे हैं ना, ये हमारा चालान नहीं, ये पैसे हुकूमत अपना इकट्ठा कर रही है। जो ये माल इकट्ठा कर रही है ना, कितना रक्षा है, 8 लाख रक्षा है लाहौर में। ये 200 रुपया 2000 रुपया कितना पैसा डेली में बनेगा, कितना बनेगा? ये सिर्फ अपना पैसा, अपना पेट पालने के लिए ये गरीब की पेट पे लात मार रही है। ये तो नाइंसाफी है। आप खुद ही देख लें इन लोगों को, ये हेलमेट पहन के चलाएंगे तो कैसे सवारी बैठाएंगे। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का कहना है कि अभी इस बारे में आगाही फैलाई जा रही है। मुस्तकबिल में इस पर सख्ती से अमल भी करवाया जाएगा। कैमरामैन बिलाल के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। अवामी रिक्शा यूनियन बेरोजगारी, महंगाई और नाजायज ट्रैफिक चलान के खिलाफ सरापा एहतजाज। रिक्शा ड्राइवर्स ने फैसल चौक में एहतजाजी डेरा लगाया। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन ने कहा कि मुल्क में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून क्यों हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बेरोजगारी, महंगाई और नाजायज ट्रैफिक चलान। अवामी रिक्शा यूनियन सड़कों पर निकल आई। सैकड़ों रिक्शा ड्राइवर्स का फैसल चौक में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने मुतालबात के हक में खूब नारेबाजी की। एहतजाज की क़यादत अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन मजीद गौरी ने की। मजीद गौरी ने कहा कि मुल्क में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून क्यों हैं। 21 फरवरी को हम अपने बीवी बच्चों के हमरा बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। जुमे वाले दिन इंशाअल्लाह यहाँ पर हम अपने बीवी बच्चों समेत और जितनी FIRs हुई हैं उन तमाम को प्रिंट करके इसी जगह पर भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन ने मजीद कहा कि अगर मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर्स हेलमेट पहनेंगे तो फिर गाड़ियों के ड्राइवर्स को भी हेलमेट पहनाए जाएं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़।
और अहम खबर ये है कि जाली उम्मीदवारों के खिलाफ लाहौर बोर्ड की बड़ी कार्रवाई। जाली उम्मीदवारों से पेपर हल करवाने पर 82 तलबा पर आइंदा 6 इम्तिहान देने की पाबंदी लगा दी गई है। लाहौर बोर्ड हुकाम का कहना है कि 82 उम्मीदवार आइंदा 3 साल बोर्ड का कोई भी इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। उनकी जगह जाली उम्मीदवार मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ में पर्चा हल कर रहे थे। जाली उम्मीदवारों के खिलाफ भी कानून के मुताबिक मुकदमात और कार्रवाई की जा रही है। 6 इम्तिहानात की पाबंदी मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों जमात के उम्मीदवारों पर लगाई गई है। उम्मीदवार अपनी जगह दूसरे तालिब इल्म को इम्तिहान दिलवाने से गुरेज करें, जबकि मैट्रिक सालाना इम्तिहान का आगाज 4 मार्च से हो रहा है। इम्तिहानी सेंटर्स में ड्यूटी का मामला, निजी उस्ताद की इम्तिहानी ड्यूटी से छुट्टी करवा दी गई है। सिर्फ सरकारी टीचर से निगरानी करेंगे। मैट्रिक इम्तिहानात में 10,000 उस्ताद की ड्यूटी लगेगी। ये रिपोर्ट देखिए। इम्तिहानात में निगरानी के लिए पॉलिसी फाइनल। निजी स्कूलों के टीचर्स इम्तिहानी ड्यूटी से फारिग, सिर्फ सरकारी टीचर्स ही इम्तिहानी ड्यूटी कर सकेंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात में निजी अमले की तैनाती की इजाजत नहीं होगी। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में 10,000 निगरान टीचर्स ड्यूटी अंजाम देंगे। बोर्ड हुकाम का कहना है कि ये फैसला नकल माफिया को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। सरकारी टीचर्स की ड्यूटी भी ऑटोमेशन के तहत लगाई जाएगी। बोर्ड हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता इम्तिहानात में नकल स्कैंडल में ज्यादातर प्राइवेट असातिज़ा मुलविस पाए गए। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।